Hi students, how are you? I'm fine. Myself Ovi Provaya from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so I think you all are fine and you are enjoying this pandemic situation. Okay, because everywhere this very dangerous situation is going on. I think in every state, this corona, this virus. Okay, actually this microorganism makes us feel that we are nothing. Okay, whatever we are and whatever we do in our real life, that is all the artificial things. Okay, so in front of the nature, we are nothing. We are just like a very small drop of water. Okay, just like this small drop of water just into an ocean. Okay, just like that. So, okay, just stay connected with the nature. Don't go against the nature. So just respect the natural calamities and natural activities. Okay, just go through the actually this good manner and the good good thinking. And I think as a responsible one, as an educated person, that we have to save the natural resources as well. Okay, so don't play with the nature. Okay, because this in front of this cosmos. Okay, the human being, that means the greatest invention of God. Whatever is being told to me just in the childhood as well, so that we are the greatest invention. Okay, so just don't play with the nature. Just go through the natural actually this natural thinking. Okay, so just whatever the nature have actually whatever the nature have given to us, just stay connected with each and everything. Okay, so don't go against the nature. So just stay connected with the natural resources and natural activities and natural thing as well. Okay, so in this lecture we are going to solve a very interesting and very conceptual also, and little bit the brain work will be there. Okay, just you have to be very much conscious about your thinking, about the daily activities. That means in probability that whatever the question had been solved in the different lectures, these are all the daily activities. That means every time just we used to do these things using our activity, that you are finding the probability, that you are drawing the ball, you are drawing the card. That means these are actually this very common thing. Okay, but we actually will not even think about the probability that the mathematical expression, this mathematical thing is being involved with these daily activities. We don't know just before getting this concept of probability. Okay, so multiplication theorem of probability. Multiplication theorem of probability. Multiplication word introduced, that means anyway this intersection concept will be arised, because in the probability concept multiplication means what, दो इवेंट दिया जाएगा. ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी किसी एक चीज का निकालना है जो इस इवेंट में भी होगा, इस इवेंट में भी होगा, दोनों इवेंट में कॉमन रहेगा. That means just like your conditional probability, and this multiplication theorem is based on the conditional probability. दो इवेंट होगा, अब दोनों इवेंट जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा. एक का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, दूसरे का प्रोबेबिलिटी इफेक्टेड होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पर जो है आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट यूज होगा. यूजिंग दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हाउ कैन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट where the intersection concept are being used. Intersection concept ये use होगा. ठीक है, तो how can you find this probability by using this conditional probability concept? This is the chapter, and in this chapter we will solve different type of questions, different actually this practical questions.
okay, where this probability concept will be used, and just you need to find the probability, you need to find this chance, okay, and you need to find the options using this probability concept and using this conditional probability concept, okay. So मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये तो आप लोग जान चुके होंगे कि यहां पर इंटरसेक्शन यूज होगा, दो इवेंट होगा, दो इवेंट के ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि दो ही इवेंट होगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो ए बी दो अलग अलग इवेंट होगा, उसमें कुछ कॉमन होगा, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी, इस चीज का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। यू नीड टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, एंड व्हेनेवर जस्ट यू विल फाइंड दिस ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी, देन you need to use this multiplication between two probabilities, okay। कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, so just give the heading multiplication theorem on probability, ठीक है। देखो, in an experiment two or more events associated with it, and then the probability of A intersection B, that means A and B, मैंने कल बोला था कि जब और यूज होता है A और B, दैट मींस दोनों में से कोई भी एक, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, तो देन यू नीड टू यूज यूनियन कॉन्सेप्ट, दैट मींस P of A union B, okay, and whenever this and word will be used, then this intersection concept needs to be introduced, okay, because intersection means what, दोनों में ही होगा, एंड इसलिए बिठाया गया है। यहां पर और देते तो दोनों में से कोई भी एक इवेंट हम लोग कंसीडर करते, इंटरसेक्शन तो ऐसा नहीं है, इंटरसेक्शन तो दोनों में से जो कॉमन होगा वही आपको कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर एंड बिठाया गया, ठीक है। सो P ऑफ ए, अच्छा यहां पर देखो, हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे P ऑफ A बाई बी निकालते थे, ठीक है, P ऑफ A बाई बी, यहां पर जो है कैसे निकालते थे, P ऑफ A intersection B by P of B. Now if you just you need to find this P of A intersection B, no? So from this concept, can I write this line, P of A intersection B equals to P of B into P of A by B? Can I write this line? And so that means it is the first multiplication theorem. There you can use this multiplication sign is used. Multiplication sign is used. Here you can see this multiplication sign is used. So that's why this multiplication theorem, the name of this theorem is multiplication theorem. And whenever this theorem are being used, then you need to be very much confident that here this intersection concept, somewhere this intersection concepts are being used, and that's why this multiplication theorem is used here, okay। So P of, similarly दो मतलब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, ये जो है ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दो, सिमिलरली P of B by A equals to P of A intersection B is the conditional probability concept, P of A. Now you need to find A intersection B here, so that means P of A into P of B by A, okay। So that means two multiplication theorems are there, including the events A and B, two events, okay। And the question is that why should I use this conditional probability concept here? Because this conditional probability concept are being used in some question where this intersection concepts are being used. So that means
यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था कि दोनों इवेंट एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा। दैट मीन्स दोनों इवेंट में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा। दैट मीन्स एक कॉमन वर्ड आ गया है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट तो वहां से ही इंट्रोड्यूस किया गया है। इसलिए यहाँ पर सो दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन कॉन्सेप्ट तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही इंट्रोड्यूस होकर आया है। सो दैट मीन्स यहाँ पर जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे वही आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था वहां से ही आप इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन ये है दोनों में कॉमन रहना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन जब करेंगे, प्रैक्टिकली जब सॉल्व करेंगे, देन आई थिंक यू विल गेट द आइडिया वेयर दिस कॉमन कॉन्सेप्ट्स will be used and where this intersection concepts are being used. Okay, just you will get the idea. You will come to know about this thing. अच्छा, now next concept is ये जो P of A by B और B by A बोल रहे हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने क्या बोला था? यहाँ पर ये लिख कर रखो, ये चीज यहाँ पर ये चीज लिख कर रखो, P of A by B। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, दैट मीन्स ए इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं, ऑफ ए इवेंट व्हेन बी इवेंट क्या है? ऑलरेडी क्या होगा? ऑलरेडी ऑकर्ड। ये तो था ना कॉन्सेप्ट कि जब आप P ऑफ A बाई B, नीचे जो रहेगा वो ऑलरेडी ऑकर्ड है, ऊपर जो रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। सिमिलरली P ऑफ B बाई A क्या होगा? Similarly, P of probability of B when A event already क्या होगा? Already occurred. That means A event already घट चुका है, उसके ऊपर बेस करके आप B event का probability निकालेंगे। ठीक है, That means यहाँ पर क्या होगा? Probability of A event मतलब A event घट चुका है, अब इसके ऊपर बेस करके आप B event का probability निकालेंगे। वही तो था ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, यहां पर P ऑफ A बाई B और P ऑफ B बाई A रिप्रेजेंट द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिकली आप लोग समझ जाएंगे। प्रैक्टिकली यू विल कम टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, ए बैग कंटेन्स, जस्ट राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, पेन और पेपर लो और ये सब कॉन्सेप्ट आप लिख कर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सब डिस्कशन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है, that means हर एक बोर्ड, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड एंड JEE मेन एडवांस कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, a bag contains 10 white and 15 black balls. A bag contains 10 white and 15 black balls. ठीक है, 10 white and 15 black balls. A bag contain 10 white and 15 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, कुछ बॉल्स है एक बैग में। ठीक है, 2 balls are drawn in succession. That means 2 balls are drawn in succession. That means एक साथ 2 बॉल ड्रॉ नहीं किया गया है, एक के बाद एक ड्रॉ किया गया है। पहले एक बॉल ड्रॉ किया गया है, कलर देखा, फिर दूसरा बॉल ड्रॉ किया है। ठीक है, इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स जो बॉल आपने ड्रॉ किया है वो आप फिर से वापस उसको डाल नहीं सकते बैग में। ठीक है, जो बॉल आपने उठाया है फेंक दो। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज व्हाइट, सेकंड इज ब्लैक? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज व्हाइट? अच्छा, यहां पर उल्टा हो गया, बात एक ही है, फर्स्ट इज ब्लैक, सेकंड इज व्हाइट। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में ये था फर्स्ट इज व्हाइट, सेकंड इज ब्लैक, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट एक ही होगा, थोड़ा
इंटरचेंज होगा। अच्छा छोड़ो इसको। A bag contain 10 white and 15 black balls. अब 2 balls are drawn in succession without replacement. That means 2 बॉल आपने ड्रॉ किया बट एक साथ नहीं, इन सक्सेशन लिखा हुआ है। दैट मीन्स एक के बाद एक। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक। पहले एक बॉल ड्रॉ किया, कलर देखा, फेंक दिया, दूसरा ड्रॉ किया, ठीक है। तो दैट मीन्स हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? Experiment is what? 2 balls are drawn. 2 balls are drawn in succession. Okay? This is the main experiment. And 2 events are associated with it. First event is what? Black ball is drawn in the first draw. Black ball is drawn in first draw. Okay? B event क्या है? White ball is drawn in the second draw. So that means यहां पर आपको here a bag contain 10 white and 15 black balls. Black balls. Here A equals to first event क्या है? Black ball is drawn. Black ball is drawn in कौन सा? फर्स्ट ड्रॉ। मतलब फर्स्ट टाइम जो आपने ड्रॉ किया है उसमें आपने ब्लैक बॉल मतलब ड्रॉ किया है। सेकेंड इवेंट होगा व्हाइट बॉल इज ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ। ये 2 इवेंट होगा। अब यहां पर देखना है कि दोनों इवेंट्स में कैसे जो है ये इफेक्ट होता है, कैसे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर काम करता है, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। कैसे देखो? अच्छा अब आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड एंड सेकंड इज व्हाइट। तो फर्स्ट इज ब्लैक, इसको आपने ए इवेंट लिया है, एंड सेकंड इज व्हाइट, दैट मींस बी इवेंट, इसको आपने बी इवेंट लिया है। सो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना यहां पर क्या है? यहां पर देखो, यहां पर here P of A intersection B, P of A intersection B निकालना है क्योंकि एंड है ना, A intersection B निकालना है। 2 फॉर्मूला है आपके पास, अब कौन सा वाला यूज करें? यहां पर देखो फर्स्ट ड्रॉ, उसको मैंने क्या नाम दिया है? फर्स्ट ड्रॉ, किसको क्या नाम दिया है मैंने? A। सो P of A निकालोगे, वो फर्स्ट ड्रॉ तो पहले उसका तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर सेकंड ड्रॉ में जाओगे, है कि नहीं? ना पहले सेकंड ड्रॉ का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। एट फर्स्ट दिस फर्स्ट ड्रॉ प्रोबेबिलिटी नीड्स टू बी फाउंड एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द सेकंड ड्रॉ, ठीक। तो फर्स्ट ड्रॉ का निकाल लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था? P ऑफ B बाई A, यही तो था ना फॉर्मूला, ठीक है। अब बोलोगे सर सेकंड ड्रॉ के लिए ये हम लोगों ने क्यों लिखा? सेकंड रो के लिए तो B होना चाहिए, सिर्फ P ऑफ B होना चाहिए, तो यहां पर मैंने क्यों लिखा? समझ में आएगा। देखो इस पे इक्वेशन नंबर 1 लिखे, ठीक है। आओ तो अच्छा यहां पर अच्छा यहां पर A इवेंट P ऑफ A, हियर P ऑफ A कितना होगा बोलो तो? 2 बॉल आपने ड्रॉ किया, 2 बॉल आपने ड्रॉ किया। ब्लैक बॉल इज ड्रॉन इन फर्स्ट ड्रॉ, मतलब आपने एक ब्लैक बॉल ड्रॉ किया है फर्स्ट ड्रॉ में, ठीक है। ब्लैक बॉल कितना था बैग में? 15 ब्लैक बॉल्स था, 15 ब्लैक बॉल्स। आपने कितना बॉल ड्रॉ किया है? 2 बॉल ड्रॉ किया है, दैट मीन्स 15C2 होल डिवाइड बाय टोटल बॉल कितना है? 25C2, ठीक है। आपने 2 बॉल ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब यहां पर तो 15 ब्लैक बॉल्स हैं, अब पर्टिकुलरली 2 ब्लैक बॉल आपने कहां से ड्रॉ किया है वो तो नहीं जानते ना हम लोग। ये तो 15 आपके पास ऑप्शन है, 15 ऑप्शंस आर देयर इन द बैग। ओके, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ 2 सॉरी 8 बॉल ड्रॉ करना है, 8 बॉल, 15C1
15C1 25C1। दैट मीन्स एक ब्लैक बॉल आपको ड्रॉ करना है, एक ब्लैक बॉल आपको ड्रॉ करना है आउट ऑफ कितना ब्लैक बॉल, 15 ब्लैक बॉल्स। तो ये है फेवरेबल में चला गया। अब प्रोबेबिलिटी में तो ये होता है, ऊपर जो है फेवरेबल इवेंट रहता है, नीचे टोटल इवेंट रहता है कि नहीं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स रहता है। तो टोटल तो यहाँ पर क्या होगा, 10 और 15 25 25 बॉल्स आते हैं। अब 25 बॉल में से एक बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये है टोटल, ठीक है। अब फेवरेबल में क्या आएगा, फेवरेबल में आ जाएगा ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है। तो ब्लैक बॉल कितना है आपके पास, 15, उसमें से कितना आपको ड्रॉ करना है, 1, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट P ऑफ A मतलब क्या है, फर्स्ट ड्रॉ, मतलब आपने एक बार ड्रॉ किया, दैट मींस एक बॉल आपने ड्रॉ किया। टोटल तो आपको 2 बॉल ड्रॉ करना है, तो एक बार ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली एक ही बॉल आएगा। 2 बॉल तो एक साथ आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है 2 बॉल आप एक साथ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेशन, दैट मींस एक के बाद एक ड्रॉ करेंगे। पहले फर्स्ट ड्रॉ में एक बॉल, सेकंड ड्रॉ में दूसरा बॉल, ठीक है। तो यहाँ पर P ऑफ A 15C1 मतलब इसका आंसर तो 15/25, इट मींस 3 और 5, 3/5 आ रहा है, ठीक है। वेरी नाउ P ऑफ क्या निकालना है, B/A। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट व्हेन A event already occurred, है कि नहीं। अब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दैट मीन्स फेवरेबल इवेंट, टोटल इवेंट दोनों ही आपको कंसीडर तो करना है कि नहीं। अच्छा, यहां पर देखो जो मैंने कॉन्सेप्ट पूछा है कि ये चीज क्यों लिखना है, यहां पर तो सिर्फ P ऑफ B होना चाहिए, क्योंकि सेकंड रो में तो सिर्फ B इवेंट होगा। आपने व्हाइट बॉल ड्रॉ किया है, P इवेंट होना चाहिए। क्यों मैंने यहां पर B/A लिया है, वो आप अभी सुनेंगे कैसे। अच्छा, यहां पर देखो P ऑफ B/A, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट। वेरी गुड, वी नीड टू फाइंड दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट हम लोगों को तो यही निकालना है। बट वन कंडीशन इज देयर, व्हेन A इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आपने फर्स्ट ड्रॉ किया है, फर्स्ट ड्रॉ में आपने कौन सा बॉल ड्रॉ किया है, ब्लैक बॉल ड्रॉ किया ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन में बोला गया है, दैट मींस फिर से ये बॉल को आप वापस बैग में नहीं रख सकते हैं। ये बैग बॉल आपने उठाया है, अच्छा ठीक है, ब्लैक आया, फेंक दो उसको। तो फेंकने से क्या होता है, टोटल बॉल्स बैग में अब क्या 25 होगा या फिर 24 होगा, टोटल बॉल कितना होगा बैग में, क्योंकि एक बॉल तो आपने फर्स्ट ड्रॉ में तो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो सेकंड ड्रॉ के लिए आपके पास कितना बॉल बचेगा, टोटल 24 बॉल्स बचेगा। 24 बॉल्स में आपको कितना बॉल ड्रॉ करना है, एक बॉल ड्रॉ करना है। ये तो टोटल इवेंट में चला गया। फेवरेबल में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट क्या था, व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है, व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल कितना रह गया बैग में, व्हाइट बॉल कितना रह गया, व्हाइट बॉल का क्वांटिटी के चेंज हुआ फर्स्ट ड्रॉ में, नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट ड्रॉ में तो ब्लैक बॉल उठाया गया था। तो दैट मींस ब्लैक बॉल यहाँ पर 15 था, अब बैग में 14 ब्लैक बॉल्स हैं, बट व्हाइट तो चेंज नहीं हुआ। व्हाट तो पहले भी 10 था, अभी भी 10 ही है। सो दैट मींस P ऑफ B/A क्या होगा, फेवरेबल में चला जाएगा 10C1, दैट मींस 10 व्हाइट बॉल है, उसमें से आप एक व्हाइट बॉल ड्रॉ करेंगे, ये फेवरेबल, और टोटल में तो 24C1। सो दैट मींस 10/24, दैट मींस 5 और इधर 12, दैट मींस 5/12। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B/A। बस वैल्यू बिठा दो, आपको A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। सो दैट इज क्या होगा, 3/5 इंटू 5/12, 5 कैंसिल, 3/12। अब समझ में आया मैंने क्यों यहां पर P ऑफ B/A लिखा है? मैंने पहले ही आपको बोला था कि
ये दोनों इवेंट्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा, एक का प्रोबेबिलिटी दूसरे का प्रोबेबिलिटी को मतलब इन्फ्लुएंस करेगा, है कि नहीं है। सो यहाँ पर आपने पहले ड्रॉ में, फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक बॉल ड्रॉ कर लिया है, उसको उठा के आपने फेंक दिया, है कि नहीं। अब फेंकने से क्या होता है, सेकेंड ड्रॉ के लिए आपके पास टोटल बॉल 24 बच गया है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो पहला ड्रॉ सेकेंड ड्रॉ का इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इज डिक्रीज्ड, कम हो गया है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो कुछ नहीं है कि आपको देखने से कैसा पता चल जाएगा कि नहीं ये यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट ही यूज होना है। सबसे पहले तो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस आप नहीं कर सकते हैं, ये है एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद एंड लिखा गया है, दैट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है आपको, जो भी इवेंट का नाम हो आपको इंटरसेक्शन निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट भी है। अगर देखो यहाँ पर सपोज यहाँ पर विथ रिप्लेसमेंट अगर होता, पहला ड्रॉ मतलब फर्स्ट ड्रॉ में आपने ब्लैक बॉल ड्रॉ किया, अच्छा देखा फिर से डाल दिया, तो यहां पर देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, क्योंकि यहां पर जो है ब्लैक बॉल आपने ड्रॉ किया है फर्स्ट ड्रॉ में, अब फिर से अपने बैग में डाल दिया विथ रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन में बोला जाएगा विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विथ रिप्लेसमेंट हो जाए तो यहाँ पर टोटल बॉल्स तो सेकंड ड्रॉ के लिए चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी चला जाएगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं है अगर विथ रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, याद रहेगा आपको। वेरी गुड ना, तो ये है 3/12 आंसर। और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा ही। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड कार्ड है, ये बहुत इंटरेस्ट लगता है मुझे कराने, क्योंकि इसमें देखो आपको ब्रेन भी यूज करना है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, डेली एक्टिविटीज ये सब जो कॉमन सेंस ये भी रहना चाहिए, सब कुछ यूज होता है इसमें, बहुत मजा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए डायमंड कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of drawing a diamond card। डायमंड कार्ड एक ही तो ड्रॉ करना है ना, ए डायमंड कार्ड। इन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्रॉज, in each of the two consecutive draws, in each of two consecutive draws, ठीक है, from a well shuffled pack of pack of 52 cards, okay, well shuffled pack of 52 cards. If the card drawn is not replaced after the first draw, if the card is not replaced after the first draw, मतलब यहां पर घुमा फिरा के एक ही बात बोला गया, that means without replacement. If the card is not replaced after this first draw के बाद जो कार्ड आपने फर्स्ट ड्रॉ में मतलब ड्रॉ किया है वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते, that means without replacement। एक छोटा सा वर्ड जो है उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं। यहां पर जो है दो ड्रॉ आपको करना है, 2 ड्रॉस, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ में भी आपको डायमंड कार्ड ड्रॉ करना है, सेकेंड ड्रॉ में भी आपको डायमंड कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक। तो यहां पर जो है दोनों ड्रॉ क्या एक साथ होगा या फिर अलग अलग होगा? कंसेक्यूटिवली बोला गया, कंसेक्यूटिवली बोला गया ना, मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ड्रॉ होगा फिर उसके बाद सेकेंड ड्रॉ होगा।
तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि फर्स्ट ड्रॉ में भी आपको डायमंड कार्ड ड्रॉ करना है, सेकंड ड्रॉ में भी आपको डायमंड कार्ड ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नाउ यू टेल मी 52 cards are there in a playing cards, in a deck of 52 cards. How many types are there? 4 type of cards are there. First one is spade, second one is heart, third one is diamond, fourth one is clubs. ठीक है, हर एक टाइप का कार्ड 13 कार्ड्स करके है, 13 4 13 52 13 करके है। डायमंड भी 13 कार्ड्स हैं, ठीक है, स्पेड भी 13 कार्ड्स हैं, क्लब्स भी 13 है, ठीक है, हार्ट भी 13 ही है, ठीक है। तो यहां पर इवेंट्स, एट फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द इवेंट्स actually which are associated with this given experiment. Okay, so how many events are there here? A equals to diamond card is drawn in first draw, मतलब फर्स्ट ड्रॉ में डायमंड कार्ड ड्रॉ किया गया। बी इवेंट क्या है? बी इवेंट में भी डायमंड कार्ड इज ड्रॉन इन सेकेंड ड्रॉ। ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ कौन सा है? तो पी ऑफ ए निकालना है ना मुझे। अच्छा, पी ऑफ ए बोलो। फेवरेबल इवेंट में क्या है? डायमंड कार्ड। कितना कार्ड ड्रॉ करना है? एक कार्ड ड्रॉ करना है। दैट मींस 13C1 हो गया, फेवरेबल है। टोटल क्या है? 52C1। टोटल तो उसमें से 52 कार्ड्स है। सो 13C1 का आंसर 13 ही होता है, ये 52 ही होता है। आप डायरेक्ट ये भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट मींस 1/4 इज द आंसर। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप आपको P ऑफ B बाई A निकालना है, क्योंकि A इवेंट पहले ऑकर्ड है, B इवेंट का निकालना है। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड कार्ड इन सेकेंड ड्रॉ when a diamond card is already drawn in first draw। ठीक है। तो यहां पर कैसे निकालेंगे हम? ठीक है। P ऑफ B बाई A, दैट मीन्स ए इवेंट जो है पहले ही ऑकर हो गया है, ऑलरेडी ऑकर्ड। सो इफ दिस ए इवेंट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, दैट मीन्स व्हाट? वन डायमंड कार्ड इज ऑलरेडी ड्रॉन। One diamond card out of this 52 cards is already drawn, and without replacement is there also. That means you can't replace this diamond card into this deck of 52 cards. आप replace नहीं कर पाएंगे। तो अब सेकेंड ड्रॉ के लिए टोटल आपके पास कितना कार्ड बचा है? 52 या फिर 51? 51 बचेगा, क्योंकि आपने तो पहले ड्रॉ में डायमंड कार्ड ड्रॉ कर लिया, उसको तो फेंक दिया आपने, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया, तो आपने तो फेंक दिया। तो टोटल तो यहां पर 51C, सेकेंड रो में कितना कार्ड ड्रॉ करना है? 1। तो दैट मीन्स टोटल में से तो आपको ये लिखना है 51C1। अब फेवरेबल में आओ। फेवरेबल क्या है? ये सेकेंड रो में भी आपको डायमंड कार्ड ही ड्रॉ करना है। अब बोलो, डायमंड कार्ड कितना बचा है? यहां पर डायमंड कार्ड कितना बचा है? पहले ड्रॉ में भी तो आपने डायमंड कार्ड ड्रॉ किया है, तो डायमंड कार्ड टोटल कितना होता है? 13 होता है ना, है? उसमें से तो एक कार्ड आपने ड्रॉ करके उसको तो फेंक दिया, बाकी कितना डायमंड कार्ड बच गया है सेकंड ड्रॉ के लिए? 12 डायमंड कार्ड्स आर लेफ्ट फॉर द सेकंड ड्रॉ। सो दैट मीन्स 12C1।
So that means 12 by 50. एंड आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? P of A intersection B equals to P of A into P of B by A. So that means P of A का आंसर कितना निकला था? 1 by 4 into 12 by 51. That means 3 by 51. 1 by 17. 1 by 17 is the final answer. 1 by 17 is the final answer. ठीक है? हाँ? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A bag contains 5 white, 7 red and 8 black balls. A bag contains 5 white, 7 red, 5 white, 7 red and 8 black balls. 8 black balls. ठीक है? If 4 balls are drawn, मतलब यहां पर if 4 बॉल ड्रॉ किया गया, 4 balls are drawn 1 by 1, मतलब एक के बाद एक, 1 by 1 without replacement. Okay. Find the probability of getting all white balls. Find the probability of getting all क्या है? white balls. मतलब है यहां पर 4 consecutive draws are there and a bag contains some different colored balls. 5 white, 7 red and 8 black balls. 3 types of balls are there in a bag. Now you need to draw 4 balls consecutively. That means 1 by 1. Not together. 1 by 1, just you need to draw these things. Okay. And you will have to find the probability that all of the balls, that means all the 4 balls which are drawn are white colored ball. White color ही होगा, चारों के चारों white colored ball होगा, बाकी कलर का बॉल हम लोग नहीं जानते. तो यहां पर जो है अब तक तो 2 चीज हम लोगों ने ड्रॉ किया है, तो यहां पर 4 चीज जो आपको ड्रॉ करना है कि नहीं? तो दैट मींस यहां पर 4 व्हाइट बॉल आपको ड्रॉ करना है. सो दैट मींस यहां पर इवेंट क्या होगा? हाउ मेनी इवेंट्स विल बी देयर? 4 इवेंट्स विल बी देयर. इवेंट ए, हियर A, white ball is drawn in first draw. याद रखना, first draw. B event क्या होगा? सेम ही होगा, white ball is drawn in second draw. C event क्या होगा? white ball is drawn in third draw. D event क्या होगा? white ball is drawn in fourth draw. ठीक है? Okay, so these are the events here and you need to find चारों ही तो आपको ड्रॉ करना है ना व्हाइट बॉल. That means ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होगा, ये भी होगा. इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन D, चारों के बीच इंटरसेक्शन होगा क्योंकि चारों ही आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है? So how can you find these 4 intersections? Very complicated and very dangerous thing. Okay? हाँ?
यहाँ पर कुछ भी डेंजरस नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉ में आपके पास कितना व्हाइट बॉल है और टोटल कितना बॉल है वो आप देख लो। फर्स्ट जो ड्रॉ किया गया ना, टोटल बॉल्स कितना है 7, 5, 12 और इधर 8, मतलब 20 टोटल बॉल्स है। व्हाइट बॉल कितना है 5 व्हाइट बॉल्स है। सो यहां पर देखो फॉर्मूला देखो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ड्रॉ दैट मींस P ऑफ A ये होगा, फिर उसके बाद P ऑफ किसका निकालोगे B का निकालोगे, जहां पर A ऑलरेडी ऑकर्ड। अब थर्ड ड्रॉ के लिए P ऑफ किसका निकालोगे C का निकालोगे। थर्ड ड्रॉ है ना C, थर्ड ड्रॉ C का निकालोगे। तो C से पहले ये जो C इवेंट ऑकर होगा, इससे पहले कौन सा इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड, A और B ऑलरेडी ऑकर हो गया ना। सो A और B, A एंड B ऑलरेडी ऑकर्ड, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ ड्रॉ के लिए किसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे 4, दैट मींस D का। कौन सा ऑलरेडी ऑकर्ड, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये है फॉर्मूला, ये लिख कर रखो। 4 इवेंट का फॉर्मूला ऐसे निकाल, 5 इवेंट भी निकाल सकते हैं, 6 इवेंट का भी निकाल सकते हैं, ऐसे चलता रहेगा, इट विल बी कंटिन्यू। ओके, सो एक एक करके हम लोग वैल्यू और बिठाएंगे, ठीक है। आप सबसे पहले P ऑफ A का, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। अच्छा, P ऑफ A का क्या होगा, हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर, 20 balls I think, 20 balls are there and white balls कितना है 5 white balls शायद, है कि नहीं, 5 white balls। तो पहला जो ड्रॉ है फर्स्ट ड्रॉ, उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 5 है फेवरेबल इवेंट पे, टोटल में 20, ठीक है। अब सेकंड ड्रॉ में आओ, सेकंड ड्रॉ में भी आप व्हाइट बॉल ही ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं। तो टोटल बॉल, ये तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, आपने एक ड्रॉ किया फेंक दिया, टोटल बॉल्स आप बैग में कितना रह गया है 19 रह गया है। और व्हाइट बॉल्स कितना रह गया है 4 व्हाइट बॉल्स आई थिंक 4। थर्ड ड्रॉ के लिए टोटल बॉल आपके पास कितना बच गया 18, क्योंकि यहां पर भी आपने तो एक बॉल ड्रॉ किया है, वो भी तो आपने फेंक दिया है, टोटल बॉल 18 हो गया। और यहां पर बाकी रह गया व्हाइट बॉल भी तो एक कम होगा, दैट मींस 3, ठीक है। फिर उसके बाद जो फोर्थ ड्रॉ है, फोर्थ ड्रॉ में कितना बच गया है 17 बच गया है, क्योंकि इस ड्रॉ में तो एक आपने ड्रॉ किया फेंक दिया है, ये तो बस हो गया 1 2 3 4। अब उसका कैलकुलेशन करना है, ये 4 ये 4 कैंसिल, फिर ये है 9, ये 3 3 9, और कुछ बाकी है क्या, तो ऊपर तो 1 होगा, नीचे 3 15 51 इंटू 19, तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता है कि नहीं। मल्टीप्लाई करके देख लो 969, 1/969, इट इज द फाइनल आंसर। ओके, हाँ, दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ना, है क्या बोलते, इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? फिर अच्छा, यहां पर देखो, ए बैग कंटेन्स 19 tickets. A bag contains, next question, a bag contains 19 tickets. A bag contains 19 tickets numbered from 1 to 19. ठीक है? A bag contains 19 tickets. A bag contains 19 tickets. A bag contains 19
tickets numbered from 1 to 19. ठीक है. A ticket is drawn. A ticket is drawn, and then another ticket is drawn. ठीक है. Without replacement. ठीक है. Now find the probability that all ticket shows even number. That means 1 to 19 कुछ टिकट्स हैं. अब हर एक टिकट में कुछ नंबर लिखा गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 19 तक नंबर्स लिखा गया है. ठीक है. नाउ यू नीड टू चूज 2 tickets. First one in the first row, second one in the second row. That means second choose. तो फर्स्ट वन आपने चूज किया है, उसके बाद आप सेकंड जो है सेकंड वन चूज करेंगे, बट विदाउट रिप्लेसमेंट. यू कांट रिप्लेस योर टिकट्स हियर. ओके. सो दैट मींस इफ यू हैव ड्रॉन योर वन टिकट्स वंस, देन इट विल नॉट बी रिप्लेस्ड इन द कलेक्शन ऑफ द टिकट्स. ओके. सो you need to find the probability that all the tickets shows even number. That means जो टिकट्स आपने ड्रॉ किया है, दो टिकट्स आपने ड्रॉ किया है, दोनों टिकट्स में इवन नंबर ही शो हो रहा है. इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे. तो 1 to 19 इवन नंबर्स कितना है वो हम लोग पहले देख लेते हैं. ठीक है. देखो 1 to 19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. इवन नंबर्स कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन नंबर्स है. और टोटल नंबर्स तो 19 ही है. ठीक है. टोटल तो यहाँ पर 19 है. इवन नंबर्स कितना है? तो लिखो टोटल नंबर्स 19. इवन नंबर्स कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन नंबर्स है यहां पर 9. तो ए इवेंट का नाम ए टिकट इज चूजन. ए टिकट इज चूजन ticket is chosen which shows even number. So that means P of A क्या होगा? इवन नंबर शो कर रहा है. इवन नंबर तो फेवरेबल में चला जाएगा 9. टोटल में तो 19 रहेगा, है कि नहीं? सेकेंड रो क्या है? सेकेंड रो में भी आपको इवन नंबर ही चूज करना है. ठीक है. सो बी इवेंट क्या होगा? So B event, a ticket is chosen. Secondly, which shows even number. That means second रो में भी आप इवन नंबर ही शो करेगा. So that means यहां पर आपको निकालना क्या है? P of A इंटरसेक्शन B निकालना है. ठीक है. मतलब दोनों ड्रॉ में ही इवन नंबर ही शो हो रहा है. So that means P of A already occurred और P of B by A B का निकालना है. ठीक है. तो that means ये
बी का निकाला, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए कितना है 9/19 इंटू पी ऑफ बी बाई ए कितना होगा। अच्छा यहां पर देखो टोटल तो 19 टिकट्स हैं, उसमें से सेकेंड रो के लिए कितना टिकट बच गया है आपके पास। ये तो आई थिंक ये बी इवेंट जो है, बी इवेंट का निकालना है ना आपको। ए इवेंट तो ऑलरेडी ऑकर्ड, बी इवेंट के लिए कितना टिकट बच गया आपके पास, 18 टिकट बच गया। दैट मींस टोटल आउटकम में तो 18 आएगा, ये श्योर है। अब बी इवेंट क्या है, आपको इवेंट नंबर ही ड्रॉ करना है, चूज करना है। तो इवेंट नंबर कितना बच गया आपके पास, एक तो आपने फर्स्ट रो में तो चूज कर लिया है, तो एक इवेंट नंबर तो दैट मींस चला गया। दैट मींस एक जैसे सपोज 2 चला जाएगा सेकंड रो के लिए। अब सेकंड रो में कितना इवेंट नंबर बच गया आपके पास, 9 था पहले, अब हो जाएगा 8। सो 8 कैलकुलेशन करो, ये 2 4/19 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, so just you can see these are all very interesting questions and the solutions where actually your brain, I think your brain are being shaped more and more. That means if you solve this type of questions purportedly, then your brain will be shaped purportedly. Okay, so now next an urn contain, an urn, it is the container actually, an urn contain 5 white and 8 black balls, 5 white and 8 black balls। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। an urn contain 5 white and 8 black balls, 5 white and 8 black balls, 8 black balls। Two successive drawings are there, 2 successive drawings of 3 balls, 2 successive drawings of 3 balls at a time are made, at a time are made such that the balls are not replaced, such that the balls are not replaced, that means without replacement। मैंने बोला ही है इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको रिप्लेसमेंट परमिशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, find the probability that the first draw, find the probability that the first draw gives 3 white balls, and second row gives 3 black balls, and second draw gives 3 black balls. So that means an urn contains different colored balls, 5 white and 8 black balls. Okay, now 2 successive drawings are there including 3 balls at a time. Okay, that means एक ड्रॉ में आपको 3 बॉल एक साथ ड्रॉ करना है, दूसरे ड्रॉ में भी आप 3 बॉल एक साथ ड्रॉ करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में जो है एक ड्रॉ में आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, एक
ड्रॉ में आपने एक बॉल ड्रॉ किया, इसमें जो है एक बार आप उठाएंगे फर्स्ट ड्रॉ, उसमें 3 बॉल एक साथ ड्रॉ करेंगे। सेकेंड ड्रॉ जो होगा उसमें 3 बॉल एक साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बट ड्रॉ ही तो यहाँ पर, ड्रॉ तो यहाँ पर 2 ही है, अलग अलग है। फर्स्ट ड्रॉ 3 बॉल एक साथ, सेकेंड ड्रॉ 3 बॉल एक साथ। अब बॉल जितना भी उठाए क्या फर्क पड़ता है, ड्रॉ तो 2 है कि नहीं। ड्रॉ तो यहाँ पर 2 बार ही होगा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि फर्स्ट ड्रॉ में जो है 3 व्हाइट बॉल्स आर ड्रॉन एंड इन द सेकेंड ड्रॉ 3 black balls are drawn. Okay, so that means how many events are there, how many draws are there? Just you can see 2 draws are there, 2 drawings are there. So that means here a event 3 white balls are drawn in first draw. B क्या होगा, 3 black balls are drawn in second draw, right? So P of A equals to, कितना बॉल आपने ड्रॉ किया है, 3 बॉल आपने ड्रॉ किया है, और तीनों बॉल किस कलर का होना चाहिए, व्हाइट कलर का होना चाहिए। व्हाइट कलर का बॉल आपके पास कितना है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, तो आउट ऑफ 5 you have to choose 3 white balls. So I think combination concept needs to be introduced. Without combination concept, I think you will not get the final answer. Because यहाँ पर 3 बॉल आउट ऑफ 5 चूज करना है, कौन सा 3 बॉल चूज करना है ये तो मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर तो सिलेक्शन आ जाएगा ना। 5 बॉल है आपके पास, 5 पेन्स है आपके सामने, आप आंख बंद करके 3 पेन चूज कर रहे हैं, अब कौन सा चूज कर रहे हैं आपको तो पता नहीं होगा ना, है कि नहीं। सो वहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, और सिलेक्शन मतलब है कॉम्बिनेशन। ओके, सो दैट मीन्स फेवरेबल में क्या आएगा, व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है, कितना, 3 व्हाइट बॉल्स, टोटल आपके पास कितना है 5, दैट मीन्स 5C3, ये तो फेवरेबल में चला गया। टोटल में कितना है 8 5 13, दैट मीन्स 13C3, टोटल तो 13 में से तो 3 ड्रॉ करना है, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, हम लोग बाद में करेंगे। फिर सेकंड में क्या निकालना है आपको, P ऑफ A तो ऑलरेडी ऑकर्ड, A तो यहां पर ऑकर हो गया है, नाउ इट्स टाइम फॉर B इवेंट। सो P ऑफ B बाई A क्या होगा यहां पर, P of B by A, that means probability, ऐसे लिखो, 3 black balls are drawn provided that 3 white balls are already drawn. That means 3 व्हाइट बॉल तो पहले से ही ड्रॉ है, किया गया है ना, पहले से ही तो जो है 3 ड्रॉ किया गया। अब 3 black balls are drawn provided that 3 white balls are already drawn. That means फर्स्ट ड्रॉ में आपने 3 white balls पहले से ही ड्रॉ कर लिया है और ड्रॉ करके फेंक भी दिया है, ठीक है। तो यहां पर तो आप सेकेंड ड्रॉ का, दैट मीन्स 3 balls are drawn, ऐसे लिखो, इन सेकेंड ड्रॉ, ऐसे लिख लो, इन सेकेंड ड्रॉ प्रोवाइडेड दैट 3 व्हाइट बॉल्स आर ऑलरेडी ड्रॉ, दैट मीन्स 3 व्हाइट बॉल आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। सो हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट इन दिस अर्न फॉर द सेकेंड ड्रॉ, 3 बॉल तो, अब कलर जो भी हो, 3 बॉल तो आपने ड्रॉ कर लिया है, फेंक भी दिया है, तो नंबर ऑफ टोटल बॉल्स कितना होगा, पहले कितना था 13, अब कितना बचा है 10। सेकेंड ड्रॉ के लिए आपके पास कितना बॉल बचा है 10 से आपको कितना बॉल ड्रॉ करना है, कलर जो भी हो, 10C3, टोटल में तो ये सब काउंट नहीं करना है, 10C3। अब फेवरेबल में कितना बॉल ड्रॉ करना है 3, कौन सा कलर का, ब्लैक कलर का बॉल कितना था आपके पास, 8 ब्लैक बॉल्स था। अब 8 ब्लैक बॉल्स का क्वांटिटी कम क्या हुआ है,
व्हाइट बॉल आपने ड्रॉ किया था फर्स्ट ड्रॉ में, तो सेकंड ड्रॉ में ब्लैक बॉल के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, दैट मींस टोटल में इफेक्ट आ गया है, टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कम हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी में इफेक्ट आ गया है, बट फेवरेबल में ब्लैक बॉल का क्वांटिटी तो चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ब्लैक बॉल्स का क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पर 8, कितना ब्लैक बॉल ड्रॉ करना है C3, बस हो गया। तो सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपको निकालना है, सो दैट मींस P ऑफ A into P of B by A, so that means 5C3 by 13C3 into 8C3 by 10C3। अब इसका कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 2, तो यहाँ पर होगा फैक्टोरियल 13 by फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 10, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 by फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10 into फैक्टोरियल 3 into फैक्टोरियल 7। तो इसका कैलकुलेशन करो, ठीक है, कैलकुलेशन करो उसका, कर ही देते हैं। यहाँ पर देखो फैक्टोरियल 5 into 4 into फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 3 into 2 होल डिवाइड बाय 13 into 12 into 11 into फैक्टोरियल 10 by 3 into 2 into फैक्टोरियल 10, 8 into 7 into 6 into फैक्टोरियल 5 by 3 into 2 into फैक्टोरियल 5, 10 into 9 into 8 into factorial 7 by factorial 3, it means 3 into 2 into factorial 7। तो यहाँ पर factorial 7 कार्ड कैंसिल। अब नीचे नीचे ये 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है, ये 3 कैंसिल, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा हुआ है। तो यहां पर देखो, तो यहां पर आपको सॉल्व करके निकालना है कि नहीं, तो दैट मींस 3 इधर 4 आएगा, है कि नहीं, और इधर तो कुछ नहीं बचा है, और इधर देखो 8 कैंसिल, ठीक है। तो बाकी जो है वो लिख लो, बाकी क्या है, बाकी यहां पर देखो 5 into 4 by 13 into 4 into 11 into 7 into 6 by 10 into 9, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 2 कर दिया, इधर ये 3 कर दिया, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और कुछ बाकी है क्या कैंसिल होगा, ऐसा कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर एक ये 3 से ये 9 कटेगा, ठीक है। ऊपर रहेगा 7, नीचे रहेगा 13 into 11 into 3, दैट मींस 7 by 429। थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है। So these are actually this multiplication theorem questions. So in the next lecture we will solve the NCERT, this R.D. Sharma and this R.S. Agarwal question. These are all actually this NCERT, these all questions which were solved in this lecture. The all questions actually are comprised in NCERT in different books actually. NCERT, R.D. Sharma, R.S. Agarwal, that you will see whenever just you will see the books and exercise miscellaneous, and everywhere that you will see this type of questions. These questions actually, okay, and actually this some same type questions supposed to be given, just you need to solve these things as your practice actually, and I think you need to practice each and every type questions, okay. So if you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel, okay, and thank you very much for joining my classes, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है, और
Stay safe and stay healthy. Okay. Bye and Jai Hind.